Salutation to the God. God means mind, mind feeling less, only pure consciousness. The meaning of the God, that is mind feeling less, pure consciousness. In Nepali, Nepali language, मनोवृत्ति रहित, mind feeling less, मनोवृत्ति रहित, नेपाली लैंग्वेज, और चित्त वृत्ति रहित, नेपाली लैंग्वेज, चित्त वृत्ति रहित, शुद्ध चैतन्य, नेपाली वर्ड, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, नेपाली वर्ड, शुद्ध चैतन्य, and mind feeling less means a Nepali word, manovritti rahit. The actual meaning of the God, that is a mind feeling less, pure consciousness. This experience we can realize in the experience of sound sleep. Sound sleep in Nepali language, Sushupti or Gadha Nidra. Sound sleep, Gadha Nidra. That is called Sushupti. We can realize the experience of the God. We all people of the world, we can realize the experience of the God. The example, for the example, experience of sound sleep in Nepali language, Sushupti. Sushupti ko anubhav, experience of sound sleep. और गाढ़ा निद्रा को अनुभव, experience of sound sleep. We actually God, which is always, which is immortal. So we belong to a mortal. We do not belong mortal. Body, not the nature of body, physical body, mortal nature. Any time can be death. Anytime. Either within 1 hour, within today, within tomorrow, also can die. Our physical body. So, no surety, no sure of the world where is the culture of death. Culture of death. Our nature is not, our actual nature is not according the rotation of death and birth. Rotation of death and birth. Our immortal nature is a pure consciousness, where is no mind feeling, because mind feeling means in Nepali manovritti, man, mind in Nepali man. Mind is a imagination on pure consciousness. Mind
in Nepali man, that is imagination upon pure consciousness. Mind temporary, always temporary. The source of tension is mind feeling. The source of troubles is mind feeling. The death and birth within mind feeling. For example, dream. Dream is the result of the mind. Nepali word man. Conclusion of mind. मन को निचोड़, मन को उपलब्धि. That is a world where is the rotation of death and birth. No surety of 1 hour also, but surety, sure of pure consciousness always. The full of pleasure we can get within pure intelligence, pure consciousness, full of pleasure, always pleasure. And we have, we should not have any worry about our earning in the future, because the previous, the past birth already has made our earning for future. So we should not have any worry about that, because to realize future, the future life, which is already made according previous life, according our previous life, past life, already made, for which we are coming to use, to utilize. And when we utilize our future, then our time of living ends, finishes. This presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Bhairava city. This expression, this presentation, according the supreme philosophy of the world, that is Vedanta in Nepali, Vedanta, in Sanskrit Vedanta, Vedanta philosophy. So it is true. Now what I am saying, that is according the supreme philosophy of the world, means according from Vedanta philosophy, means Upanishad philosophy. The word Upanishad, that is according Sanskrit language, Indian language, and Nepalese language. Today means 2024, December 4th, today Wednesday. Now this I explain in Indian language and Nepalese language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा ही हम लोगों का असली स्वरूप है. भौतिक शरीर हम लोगों का असली स्वरूप नहीं है, जिसका
शाम तक कोई भरोसा नहीं है, कल तक कोई भरोसा नहीं है। दुनिया में कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता है कि शाम तक हमारा देह रहेगा। दुनिया में कोई भी गारंटी से नहीं कह पाएगा कि कल तक हमारा शरीर रहेगा। यह है भौतिक शरीर का प्रकृति, जिसमें कोई भरोसा लायक नहीं है, क्योंकि झूठा का नाम है संसार, झूठा का नाम है शरीर। जब भी जा सकता है, जब भी मर सकता है। अगर मर गया तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होगा। अगर शरीर आज ही खत्म हो जाए, मर जाए, कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। परमात्मा भी जिम्मेदार नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहेगा परमात्मा कि संसार शरीर कहाँ सत्य है। सत्य तो परमात्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है। चेतन वस्तु, जो चैतन्य वस्तु है, उसका गारंटी है। शास्त्र कहता है चैतन्य का अनुभव करो, वहां मृत्यु नहीं है। शरीर में तो मृत्यु है ही है। जिसको, जो शरीर है, जिसको कोई भरोसा कभी भी नहीं है, इसलिए शरीर का मौत में कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जो अमर है, जो परिपूर्ण है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, उसका नाम है शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य, चेतन, जो हरदम रहता है, सबके भीतर हरदम रह रहा है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख के नाम नहीं है, जहाँ कोई चिंता का नाम नहीं है, कोई चिंता लेने का आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र कहता है, दिखलाता है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो पहले जन्म में बन चुका है, हम लोगों ने जो पहले जन्म में कर चुके हैं, उसका फल भोगने के लिए ये संसार, ये शरीर आया है। जो पहले जन्म में हम लोग कर चुके हैं, अच्छा या बुरा, उसी का परिणाम भोगने के लिए हम लोग अभी आ रहे हैं। वही भोगने के लिए। अगर पहले अच्छा किया था तो अच्छा ही हमारा फ्यूचर बनेगा। अगर बुरा किया था तो भविष्य में बुरा ही, तकलीफ ही, तनाव ही भोगना पड़ेगा। वो बन चुका है, वो भोगना ही पड़ेगा। वही भोगने के लिए शरीर रह रहा है। ये शरीर तब तक रहता है जो जब तक भोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर में जो हम लोग ने भोगना है, वो पहले से बन चुका है। वही भोगने के लिए ये शरीर आया है। और जब भोग समाप्त होगा, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव जब समाप्त हो जाएगा, तभी शरीर भी समाप्त हो जाएगा। ये कहना है सर्वोच्च दर्शन, जो वेद का सार वेदांत है, जो उपनिषद है, उसका सार है। इसलिए यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ सच्चाई, जो सत्य बात है, वो ही आते रहेगा, आएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन में ये कह रहे हैं, आज का दिन का मतलब मार्ग शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। आज है बुधवार, विक्रम संवत 2081, मंगशीर महीना 19 गते बुधवार। नेपाली लैंग्वेज अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। त्यो हो शुद्ध चैतन्य,
तर मनोवृत्ति होइन। मनोवृत्ति कल्पित हो, जहाँबाट दुःख भरि भराउ रहेका छन्। मनोवृत्ति हाम्रो लाइन होइन, हाम्रो लाइन हो शुद्ध चैतन्य परमात्मा। यसमा सुखै सुख छ। त्यसैले आफ्नो जो स्वरूप हो, सनातन स्वरूप शुद्ध चैतन्य, जो वेदान्तको भनाइ हो, जो सर्वोच्च दर्शन वेदान्तको भनाइ हो, यही अनुसार रहेपछि हाम्रो जीवन, हाम्रो स्थिति सधैँ परमात्मा रूपले, अमर रूपमा, परिपूर्ण रूपमा स्वतः रहिरहने हुन्छ। कुनै पनि चिन्ताको आवश्यकता छैन, किनकि पहिले जो प्रारब्धमा लिएर आएका थियौँ त्यही भोग्न आएको हो। त्यो भोगेपछि हाम्रो शरीर छुट्छ, त्यो नभोग्दासम्म शरीर छुट्दैन। त्यसकारण जो बन्नु छ, गर्नु छ, त्यो भइसकेको छ, केवल हामीले भोग्नु मात्र बाँकी छ, सुख या दुःख। यसैले निश्चिन्त भएर परमात्मा मात्रमा अनुभव गरिरहनु हो हामीहरूको एकमात्र कर्तव्य। अहिले 15 मिनटको समय समाप्त भइरहेको छ। हरिओम तत्सत्।